ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سلمان افندی 36 سال کا، ملک کا سب سے بڑا وکیل، قد لمبا، آنکھیں گہری اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ سامنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز ہے۔ عدالت میں جج بھی اس کی بات غور سے سنتے تھے۔ وہ صرف کیس نہیں لڑتا تھا، وہ جنگ لڑتا تھا اور ہر جنگ جیتتا تھا۔ اسی لیے اس کی فیس بھی عام انسان کی پہنچ سے دور تھی۔ لاکھوں کیا، کچھ کیسوں میں تو کروڑوں کی رقم آتی تھی۔ اس صبح بھی وہ اپنے شیشے والے میٹنگ روم میں کلائنٹس کے ساتھ بیٹھا تھا، ایسے امیر اور طاقتور لوگ جن کے مسائل عام انسان کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، ہر لفظ کو ذہن میں تول رہا تھا، ہر زاویے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک شور ہوا، چھوڑ دو مجھے اندر جانا ہے، پلیز روکو مت۔ سلمان کی نظریں خود بخود اٹھ گئیں۔ کانچ کے پار منظر عجیب تھا۔ 2 باڈی گارڈ ایک باریک سی لڑکی کو روک رہے تھے۔ لڑکی بمشکل 18 سال کی لگ رہی تھی، سفید نیلے کالج یونیفارم میں، کانپتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو۔ میم، آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، گارڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا اپوائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے، لڑکی کی آواز لرز رہی تھی، لیکن مجھے سلمان صاحب سے ملنا ہے، ابھی کے ابھی۔ کلائنٹس نے بیزاری سے رخ موڑا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن سلمان افندی نے لڑکی کو دیکھنا بند نہ کیا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی، لمبے سیاہ بال بارش کی طرح بھیگے، نقوش معصوم جیسے دنیا کی سختی سے ناواقف۔ لڑکی کے اندر اتنی بے بسی تھی کہ سلمان نے پہلی بار سوچے بغیر کہا، اسے اندر آنے دو۔ باڈی گارڈ کے چہرے پر حیرت کی لکیریں تھیں۔ سلمان افندی کبھی کسی غریب کو آفس میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج وہ لڑکی کے دکھ کو نظر انداز نہ کر سکا۔ دروازہ کھلا، لڑکی ہچکیاں لیتی اندر آئی۔ کالج کا بیگ کندھے سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ سلمان کے سامنے رکی اور ایک لمحے کے لیے جیسے سانس لینا بھول گئی۔ سلمان نے پہلی بار نرم لہجے میں پوچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ فصیحہ، لڑکی نے مشکل سے کہا۔ فصیحہ نعیم۔ اور یہاں کیوں آئی ہو؟ فصیحہ کی آنکھوں میں آنسو اور شدید تھکن تھی۔ اس نے بیگ سے ایک طے شدہ فائل نکالی اور سلمان کے سامنے رکھی۔ یہ میری آپی ثانیہ کا کیس ہے۔ آواز رک گئی۔ کیس؟ سلمان نے بھویں اٹھائیں۔ کیا ہوا تمہاری بہن کو؟ یہ سنتے ہی فصیحہ ٹوٹ گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سلمان آہستگی سے پوچھنے لگا، فصیحہ تم رو کی رہی ہو، کیا ہوا؟ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، میری آپی پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ ایک باثر آدمی نے ان پر چوری، بدنامی، ہر جھوٹا کیس ڈال دیا ہے۔ اب وہ جیل میں ہیں اور تم یہاں آئی ہو۔ فصیحہ نے بمشکل آنکھیں اٹھائی۔ آپ ہی ہیں جو انہیں بچا سکتے ہیں۔ سب کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا وکیل آپ ہیں۔ سلمان نے گہری سانس لی۔ لیکن میری فیس؟ وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ فصیحہ نے فوراً کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں، ہم بہت غریب ہیں، لیکن میں بدلے میں جو بھی آپ کہیں، جو بھی آپ مانگیں کرنے کو تیار ہوں۔ کمرے میں ہوا رک گئی۔ کلائنٹس کے چہرے حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن سلمان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور آگے جھک کر فصیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ معصومیت، بے بسی، بھروسہ، سب کچھ اس کی آنکھوں میں تھا۔ میں تمہاری بہن کا کیس ایک شرط پر لڑوں گا۔ کہ کون سی شرط؟ فصیحہ نے رکتے ہوئے پوچھا۔ سلمان کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ اگر تم 3 ماہ کے لیے مجھ سے نکاح کر لو۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ فصیحہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ نکاح؟ ہاں، سلمان کی آواز میں پختہ یقین تھا۔ میں تمہاری بہن کو 1 ہفتے میں آزاد کرا دوں گا، لیکن بدلے میں تم 3 ماہ میری بیوی بن کر رہو گی۔ عدالت میں، میڈیا کے سامنے، گھر میں، ہر جگہ۔ فصیحہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسا معاہدہ ہے؟ وہ بے بسی سے بولی۔
सलमान अपनी कुर्सी से उठा और उसकी तरफ चलते हुए बोला, दुनिया के कुछ जुल्म, कुछ ताकतें सिर्फ ताकत से टूटती हैं फसीहा, और तुम्हारी बहन के दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। मैं उनसे लड़ सकता हूं, लेकिन किसी एक वजह के लिए, किसी एक शख्स के लिए। फसीहा की सांसें तेज हो गई। सलमान ने आहिस्तगी से कहा, और तुम शायद वो वजह बन सकती हो। फसीहा ने सर झुका लिया और आंसू टपकने लगे। अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, सलमान ने साफ जवाब दिया, और तुम्हारी बहन हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे रह जाएगी। ये जुमला फसीहा के दिल में चाकू की तरह लगा। वो एक लम्हा आंखें बंद करके हिचकिचाई, फिर हल्की सी आवाज में कहा, अगर मैं निकाह कर लूं तो क्या आप वाकई मेरी बहन को आजाद कर देंगे? सलमान ने बगैर झिझक कहा, मैंने कहा है तो कर दूंगा। चंद दमों की खामोशी के बाद फसीहा ने आहिस्ता से सर उठाया। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। सलमान की आंखों में पहली बार हल्की सी नरमी आई। उसने फौरन हुक्म दिया, निकाह ख्वाह को बुलाओ, 2 गवाह बुलाओ। पूरे ऑफिस में भगदड़ मच गई। लोग हैरान थे कि मुल्क का सबसे ताकतवर वकील एक 18 साला गरीब लड़की से निकाह कर रहा है। निकाह हुआ। फसीहा के हाथ कांप रहे थे। सलमान का लहजा मजबूत, मगर चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मौलवी साहब ने पूछा, कबूल है? सलमान ने बगैर सोचे कहा, कबूल है। फिर फसीहा से पूछा गया। दिल जैसे चीख रहा था, ना कहो, भाग जाओ, लेकिन जबान पर सिर्फ एक जुमला आया, कबूल है। 3 बार यूं एक मुआयदा, एक दर्द, एक बेबसी, एक नया रिश्ता वजूद में आया। निकाह के बाद सलमान ने सब क्लाइंट्स को बाहर भेज दिया। सिर्फ फसीहा बाकी रह गई। वो आहिस्तगी से उसके करीब आया और नरम आवाज में बोला, घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ये निकाह बस एक मुआयदा है। फसीहा ने धीरे से सर हिलाया। सलमान ने कहा, अब तो मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। आज से तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन दुनिया के सामने मुकम्मल बीवी। फसीहा ने दिल पर हाथ रखा। सांसें अटकने लगी। वो सलमान के साथ ऑफिस से बाहर निकली। लोगों की नजरों में हैरत, सवाल, कुछ में नफरत भी थी, लेकिन फसीहा के जहन में सिर्फ एक जुमला था, मेरी आपी को इंसाफ मिल जाएगा, वो आजाद हो जाएंगी। वो खामोशी से सलमान की गाड़ी में बैठ गई। उसे मालूम नहीं था कि अगले 3 माह उसकी जिंदगी के सबसे खौफनाक और सबसे खूबसूरत हकीकत बनने वाले हैं। गाड़ी तेजी से सड़क पर चल रही थी। फसीहा की आंखें खिड़की के बाहर जमी थी, मगर दिल कहीं और था। वो सलमान के साथ वाली सीट पर बैठी थी, मगर दोनों के दरमियान खामोशी ऐसी थी जैसे 2 अजनबी दुनियाओं के लोग हों। हाथ कांप रहे थे। निकाह का कागज हर लम्हे उसकी हकीकत याद दिला रहा था। सलमान गाड़ी चलाते हुए एक बार भी फसीहा की तरफ नहीं देख रहा था। ना उसके लहजे में कोई नरमी थी, ना तलखी, बस एक सर्द ठहरा हुआ सकूत, जैसे खुद भी नहीं जानता था कि उसने ये फैसला क्यों किया। गाड़ी शहर के अंदरूनी हिस्सों से निकलकर लाहौर के पोश इलाकों की तरफ मुड़ रही थी। चमकती हुई सड़कें, लंबे दरख्त, वसी बड़े घर, सब कुछ फसीहा के लिए नया था। वो गरीब मोहल्ले की छोटी गलियों से आई थी, जहां घरों के दरमियान दीवार भी मुश्किल से होती थी। सलमान ने पहली बार खामोशी तोड़ते हुए कहा, घर पहुंचकर घबराना मत, वहां बहुत लोग होते हैं, तुम्हें उन सब के सामने मजबूत दिखाई देना है। फसीहा ने आहिस्ता से पूछा, वो लोग कौन? मेरा खानदान, मेरे स्टाफ के लोग, मेरा बिजनेस सर्कल। सलमान ने उसे बगैर देखे कहा, आज से वो सब तुम्हें मेरी बीवी के तौर पर देखेंगे। फसीहा का दिल धड़कने लगा। बीवी, लफ्ज उसके लिए इतना भारी क्यों था? शायद इसलिए कि वो जानती थी ये रिश्ता हकीकत नहीं था, सिर्फ एक मुआयदा था। गाड़ी एक बड़े भारी लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट ऑटोमेटिक खुला और अंदर वसी और अरीज लॉन नजर आया। हसीन फूल, फवारे, राहदारियां, ये सिर्फ घर नहीं बल्कि महल था। फसीहा की सांस थम सी गई। ये आपका घर है? सलमान ने हल्का सा जवाब दिया, हाँ। गाड़ी मेन पोर्च के सामने रुकी। 2 मुलाजिम फौरन आगे बढ़े। एक ने गाड़ी का दरवाजा खोला, दूसरा सलमान को सलाम करने लगा। सर, आप वापस आ गए?
सलमान ने मुख्तसर सर हिलाया और उतर गया। फिर जैसे याद आया कि फसीहा भी उसके साथ है, वो रुक कर बोला, उतर जाओ। फसीहा ने यूनिफॉर्म के दामन को पकड़ते धीरे से गाड़ी से कदम बाहर रखा। दिल धड़क रहा था। उस घर के सामने वो खुद को नन्हा सा महसूस कर रही थी, जैसे किसी और दुनिया में गलती से आ गई हो। दरवाजे के पास एक बावकार दबंग सी औरत खड़ी थी। उम्र तकरीबन 50 के करीब, सफ़ेद साड़ी, चेहरे पर सख्ती। सलमान की माँ ताहिरा बेगम। वो तेज कदमों से सलमान के करीब आई। सलमान, तुमने कहा था शाम तक आओगे। ये? उनकी नज़र फसीहा पर पड़ी। वो एक लम्हे को रुक गई, फिर हैरत और गुस्से के इम्तजाज से बोली, ये कौन है? सलमान ने सीधा जवाब दिया, ये मेरी बीवी है। पोर्च में जैसे जमीन हिल गई हो, मुलाजिम एक दूसरे को देखने लगे। ताहिरा बेगम के हाथ की नस फूल गई। क्या कहा तुमने? उनकी आवाज सख्त हो गई। अम्मी, मैंने निकाह कर लिया है, सलमान ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। फसीहा डरकर एक कदम पीछे हट गई। उसने पहली बार सलमान के चेहरे पर नरमी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ फैसला था। ताहिरा बेगम का गुस्सा फट पड़ा। ये लड़की कौन है? कहां से आई है? तुम्हें इतने बड़े फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? सलमान ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जरूरत थी, आपको तफसील बाद में बताऊंगा, अभी इसे अंदर ले जाने दे। ताहिरा बेगम ने फसीहा को ऊपर से नीचे तक देखा। सफेद नीली यूनिफॉर्म, कॉलेज बैग, नन्हा सा वजूद, आंखों में खौफ। वो तंजिया हंस पड़ी। वाह, तो मुल्क के सबसे बड़े वकील, लाखों में खेलने वाले सलमान आफंदी एक कॉलेज की लड़की से निकाह करके लाया है। उनके लहजे की नफरत ने फसीहा का गला खुश्क कर दिया। सलमान ने पहली बार थोड़ा सख्ती से कहा, अम्मी, बराए मेहरबानी, ये मेरी अहलिया है। ये जुमला फसीहा को अंदर तक लर्जा गया। दिल में अजीब सी ठंड दौड़ गई। ताहिरा बेगम मजीद कुछ कहना चाहती थी, मगर सलमान की ताकतवर मौजूदगी ने उन्हें खामोश करा दिया। मुलाजमा को बुलाओ, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। एक मुलाजमा दौड़ कर आई। इस लड़की को ऊपर गेस्ट रूम में ले जाओ, कुछ कपड़े दे दो, यूनिफॉर्म बदलवा दो। और फिर तंजिया निगाह से फसीहा की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी हालत में कोई घर में दाखिल नहीं होता। फसीहा ने सर झुका लिया। सलमान ने लम्हे भर उसे देखा और आहिस्ता बोला, फसीहा, ऊपर चली जाओ, तुम थक गई होगी। फसीहा ने हाथ जोड़कर आहिस्ता कहा, जी। वो मुलाजमा के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। नीचे एक बार सलमान को देखा। वो अपनी मां से बहस कर रहा था। दोनों के दरमियान कशीदगी थी। कमरे में ताकत, दौलत, सियासी असर, सब कुछ था, मगर सुकून नहीं। फसीहा ने नजरें झुका ली। उसे याद आया कि वो यहां क्यों आई है। सानिया आपी, उसकी मजलूम बहन, जिसके लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। ऊपर गेस्ट रूम का दरवाजा खुला। कमरा इतना खूबसूरत था कि फसीहा हैरान रह गई। छत पर झाड़, फानूस, नरम बेड, सफेद पर्दे, महंगा फर्नीचर। मुलाजमा ने मेहरबानी से कहा, बीबी ये ड्रेस बदल लें, मैं चाय लेकर आती हूं। फसीहा ने खामोशी से सर हिलाया। आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान ना सकी। डरी हुई कॉलेज की लड़की जो आज किसी ताकतवर शख्स की बीवी बन गई थी। चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाएं। मुलाजमा की जगह सलमान खड़ा था। फसीहा सहम कर पीछे हटने लगी। जी। सलमान आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। ये पहला मौका था जब वो उसे आंखों में देख रहा था। डरो मत, धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस 2 बातें जरूरी हैं। फसीहा ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, जी बोलिए। सलमान ने हाथ बांधकर खड़े होते कहा, पहली बात, ये निकाह एक मुआहदा है। मैंने तुमसे कोई जाती फायदा नहीं उठाना। हम 3 माह तक एक ही घर में रहेंगे, मगर मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फसीहा ने हैरत से सर उठाया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी ताकत वाला इंसान भी ऐसी बात कह सकता है। और दूसरी बात, वो धीमी आवाज में बोली। सलमान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बहन का केस हाथ में ले चुका हूं। कल सुबह अदालत में दरख्वास्त दायर कर दूंगा। 1 हफ्ते में तुम्हारी बहन बाहर होगी। फसीहा की आंखों में आंसू आ गए। इस बार खौफ के नहीं, शुक्र के।
शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। उसकी आवाज़ रूहानी थी। सलमान ने हाथ उठाया जैसे वो उसके जज्बात रोक देना चाहता हो। अब आराम करो, कल का दिन बहुत भारी होगा। वो पलटा, दरवाजे तक गया, मगर फिर रुककर बोला, और हाँ, अगर घर में कोई तुम्हें बुरा कहे, शक करे, तुम्हारा माजी पूछे, तुमने किसी को जवाब नहीं देना। सिर्फ मैं जानता हूं कि यह निकाह क्यों हुआ है। तुम सुकून से रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर वो बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो फसीहा पहली बार बिस्तर पर बैठ गई। सब कुछ बदल चुका था। दिन, रिश्ता, जिंदगी। उसे लगा जैसे वो ख्वाब में है, ये शायद ये वो हकीकत थी जिसे वो कभी सोच नहीं सकती थी। रात ढलती गई। सलमान के घर में खामोशी छाई रही। बस कहीं दूर किचन से बर्तन रखने की आवाज़ आती रही। फसीहा ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत देना, मैं आप ही के लिए आई हूँ, मेरे कदम डगमगा ना जाएं। वो आंखें बंद किए लेट गई और उसे मालूम नहीं था कि नीचे लाउंज में सलमान आफंदी जाग रहा था। खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा था और पहली बार खुद से सवाल कर रहा था, मैंने ये फैसला क्यों किया? ये लड़की मेरे दिल में कैसे उतरी? घर आए हुए चंद दिन हो चुके थे। रस्म निकाह के बाद फसीहा कानूनी तौर पर सलमान की ज़ौजा थी, मगर हकीकत में वो अब भी उसी मकाम पर खड़ी महसूस कर रही थी जहां उसने पहली बार इल्तिजा की थी। निकाह की जद में आई जिम्मेदारियां, खानदान की नजरें और उस रिश्ते का बेनाम सा बोझ, ये सब मिलकर उसकी आसाब पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई अनदेखे हाथ मुसलसल दिल पर दबाव डाल रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा बोझ सलमान का वजूद था। वो शख्स जो खुद पर मुकम्मल काबू रखता था, जिसकी आंखों में जज्बात कम और फैसले ज्यादा बोलते थे और जिसकी मौजूदगी में हर कोई सीधा होकर बैठने पर मजबूर हो जाता था। फसीहा उस शख्स के साथ रहते हुए खुद को कैद में महसूस नहीं करती थी, लेकिन हर वक्त एक अनजाना दबाव रहता था कि कहीं वो गलत ना हो जाए, कहीं सलमान के मयार पर पूरा ना उतर सके। अभी वो लॉन में खड़ी पौधों को पानी दे रही थी कि कोर्ट का वही नोटिस दोबारा मेज पर गिरता दिखाई दिया जो कल रात सलमान ने उसे पढ़ने का मशवरा देते हुए दिया था। बात नरम थी, लहजा नॉर्मल, मगर फसीहा को लगा जैसे सलमान उसे पढ़ाई की कमजोरी पर टोक रहा है। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई मौजूद है। दिल धड़का। पीछे मुड़ी तो सलमान बिल्कुल करीब खड़े थे, आज बगैर कोट के, सिर्फ ड्रेस शर्ट में, और पहली बार एक आम इंसान की तरह। सलमान ने आहिस्ता से पूछा, सुबह से कुछ बेचैन लग रही हो, खैरियत? फसीहा ने पानी देने वाला जग एक तरफ रखा और नजरें चुराई। नहीं, बस घर की याद आ रही है शायद। सलमान ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को देखा, जैसे कोई चीज नोट कर रहा हो, किसी की लकीरों में अल्फाज तलाश कर रहा हो। तुम चाहो तो आज अपने घर जा सकती हो, मैं ड्राइवर भिजवा देता हूं। फसीहा ने जल्दी से सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं, ऐसा नहीं चाहती, अभी नहीं। उसके लहजे में अजीब सा खिंचाव था। सलमान कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, अगर कभी दिल करे बिला झिझक कहना, तुम पर पाबंदी लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं। ये बात अजीब थी। फसीहा को लगा जैसे वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि यह निकाह महज एक मुआयदा है, कोई जबर नहीं। दोपहर के वक्त मिसेस समारा, सलमान की मासी नुमा हाउस केयर, चाय लेकर आई। बेटा, आजकल तुम बहुत खामोश रहती हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे कहना, मैं बरसों से साहब के साथ हूं। फसीहा के ज़हन में सवालों की एक फहरिस्त तेजी से बनी, मगर उसने कुछ न कहा। मैं ठीक हूं। समारा हल्की हंसी हंसी। साहब सख्त जरूर हैं, पर दिल के बुरे नहीं, बस काम का दबाव ज्यादा होता है। तुम्हारी मौजूदगी से घर में कुछ नरमी आ गई है। फसीहा के कदम रुक गए। नरमी? मैंने क्या किया है? समारा ने चाय रखते हुए कहा, कभी उनके ऑफिस के बाहर जाकर देखो, चारों तरफ लोग उनसे डरते हैं। तुम वाहिद हो जिसे देखकर साहब के लहजे में ठहराव आता है। फसीहा की सांस हल्की बेतरतीब हुई। क्या वाकई ऐसा था या ये सिर्फ समारा का वहम? शाम के करीब सलमान की गाड़ी पोर्च में रुकी। आज वो मामूल से थका हुआ लग रहा था।
टाई ढीली, आंखों में हल्की हिद्दत, जैसे बहुत गहरे ख्यालों में डूबा हो। फसीहा ने किचन से निकलते हुए उसे देखा। सलमान ने भी इसे नोट किया, मगर कुछ कहे बगैर सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। यही रोजाना का मामूल था, घर आते ही काम में डूब जाना। लेकिन आज फसीहा को यह खामोशी कचोके देने लगी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके स्टडी का दरवाजा खटखटाया। टिक टिक। अंदर आ जाओ, सलमान की गंभीर आवाज आई। फसीहा ने दरवाजा खोला तो देखा सलमान फाइलों में घिरा बैठा था। उसकी ऑफिस की मेज पर कई केसेस की फाइल्स खुली हुई थी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर कानूनी नुकात की लिस्ट चल रही थी। फसीहा ने आहिस्ता से पूछा, आप कुछ खाएंगे? सलमान ने बगैर नजरें उठाए जवाब दिया, अभी नहीं, बस थोड़ा सा काम बाकी है। चंद सेकंड खामोश खड़ी रहने के बाद सलमान ने उसे देखा। तुम कुछ कहना चाहती हो? ये सवाल इतना मजबूत था कि फसीहा घबरा गई। जी मैं, बस साफ साफ कहो। फसीहा ने धड़कते दिल से कहा, आप इतना काम क्यों करते हैं, थकते नहीं? सलमान ने गहरी सांस ली। यही मेरी जिंदगी है, केसेस, जिम्मेदारियां, फैसले, ये सब खत्म नहीं होते। फसीहा ने हिम्मत जमा की, लेकिन इंसान है ना आप भी, थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते? सलमान ने पहली बार हल्की मुस्कुराहट दिखाई, वही मुस्कुराहट जो लोग देखने के लिए तरसते थे। मेरे आराम का इख्तियार मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं मांगा। फसीहा की आंखें फैल गईं। ये छोटा सा जुमला सलमान की तन्हाई और इंसानियत की कहानी खोल गया। वो बगैर सोचे स्टडी की खिड़की के पास गई और पर्दे खोल दिए। शाम की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। सलमान ने हैरानी से उसे देखा। ये क्या? कमरा तो घुटन से भरा था, हवा आएगी तो शायद काम में आसानी हो जाए। सलमान ने बहुत आहिस्ता कहा, जैसे कोई गहरा एतराफ, तुम अजीब हो, और शायद अजीब ही मेरी जिंदगी में कमी थी। फसीहा ने नजरें झुका दी, दिल की धड़कन तेज हो गई। रात गए सलमान ने फाइलें बंद की और लाउंज में आया। फसीहा अभी तक जाग रही थी, हाथ में किताब लिए। तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, आपका इंतजार था। सलमान के लिए यह गैर मुतवक्को था। वो सोफे पर बैठा और पूछा, क्यों इंतजार कर रही थी? फसीहा ने किताब बंद की। ऐसे घर में रहकर जहां आप सबसे डरते हैं, कभी कभी दिल चाहता है आप खुद बताएं कि आप ठीक हैं या नहीं। सलमान ने गौर से देखा, तुम्हें घर में कोई डराता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस सब आपको बहुत बड़ा समझते हैं, शायद इतना बड़ा कि कोई आम बात भी नहीं कर सकता। सलमान के चेहरे पर वही संजीदगी लौट आई। मैं इतना बड़ा नहीं जितना लोग समझते हैं, मैं बस अपनी जिम्मेदारियां निभाता हूं। फसीहा ने धीरे से पूछा, और मेरा इस काम में क्या मुकाम है? कमरे का माहौल लम्हे भर के लिए रुक गया। सलमान ने आहिस्तगी से कहा, तुम मेरे निकाह में हो, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। 3 माह का वादा है, मगर। वो रुका। फसीहा का दिल डूबा। मगर? सलमान ने आंखों में देखते हुए कहा, शायद ये रिश्ता 3 माह की हद कबूल नहीं करेगा। फसीहा की सांस रुक गई। उसने कभी ऐसा जुमला सलमान से नहीं सोचा था। सलमान उठने लगा, मगर जाते जाते बोला, वो जुमला जिसने उस रात फसीहा के दिल में तूफान बिखेर दिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मगर अभी नहीं, वक्त आने पर कहूंगा। उस रात फसीहा की आंखें देर तक जागती रही। उसके दिल में सलमान के बारे में जो उलझने, खौफ और पर्दे थे, वो सब एक एक करके हटने लगे। उसे लगने लगा था कि सलमान आफंदी, मुल्क का सबसे बड़ा वकील, सिर्फ अदालतों में सख्त है, अंदर से नहीं। अंदर से वो भी थका हुआ, तन्हा और शायद टूटा हुआ इंसान है। और शायद, बस शायद, उसकी जिंदगी में फसीहा की जरूरत इससे ज्यादा थी जितनी वो सोच सकती थी। फजर की अजान के कुछ ही देर बाद पूरे बंगले में हल्की रोशनी फैल गई। फसीहा पुरसकून जागी, जैसे रात को सलमान के बात ने दिल की गहराइयों में कोई नया दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन साथ ही एक अनजानी घबराहट भी दिल में सर उठा रही थी। आखिर सलमान ने क्या कहना था जो अभी नहीं कह सका? वो कमरे से निकलकर लाउंज में आई। घर हैरत अंगेज तौर पर खामोश था। हर रोज मुलाजमीन इधर उधर काम में लग जाते,
مگر آج ماحول غیر معمولی سکون میں تھا۔ وہ ڈائننگ کی طرف بڑھی تو غیر متوقع منظر نے اسے چونکا دیا۔ سلمان میز پر بیٹھا تھا، فائلوں میں گم نہیں بلکہ کافی کا کپ لیے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ فصیحہ رک گئی۔ سلمان نے نظریں اس کی طرف موڑی۔ تم جلدی جاگ گئی ہو؟ اس کا لہجہ عام سا تھا، مگر ہر بار فصیحہ کے دل کی دھڑکن بدل دینے والا وزن اس میں موجود ہوتا تھا۔ فصیحہ آہستگی سے بولی، آپ آج گھر پر ہیں؟ سلمان نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں، آج ایک اہم ملاقات ہے، مگر وہ گھر پر ہی ہو رہی ہے، میں باہر نہیں جا رہا۔ فصیحہ نے حیرت چھپاتے ہوئے کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھ گئی۔ کیسی ملاقات؟ ایک نئے کیس کے متعلق۔ معاملہ حساس ہے اور کچھ پہلو ذاتی نوعیت کے ہیں، اسی لیے چاہا کہ ملاقات یہاں ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب سلمان نے اپنی پیشہ ورانہ معاملات میں اسے کسی حد تک جھانکنے دیا۔ فصیحہ نے سوال نہیں کیا، مگر سلمان کے چہرے پر وہ پڑ گیا کہ وہ اس کے تاثرات سمجھ گیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اس لیے بتایا کیونکہ اب تم اس گھر میں رہتی ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہاں کون آ رہا ہے اور کیوں۔ فصیحہ کے اندر عجیب سا احساس ابھرا، کیا یہ حق تھا یا صرف اطلاع؟ مگر سلمان کے لہجے میں جبر نہیں تھا، بلکہ ایک حد تک احترام اور اعتراف تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر بیل بجی۔ چوکیدار نے اطلاع دی کہ مہمان آ گئے ہیں۔ فصیحہ رسوئی میں تھی، مگر لاؤنج کی طرف جھانکا تو دیکھا 4 افراد اندر آئے تھے، 2 نوجوان لڑکے، ایک درمیانی عمر کا شخص اور ایک ادھیڑ عمر عورت، جن کے چہروں پر شدید فکر اور بے چینی نمایاں تھی۔ سلمان نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ فصیحہ احتراماً پیچھے ہٹنے لگی، مگر سلمان نے اچانک کہا، تم یہیں رہو۔ وہ چونکی مگر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سلمان معمولی باتوں میں بھی اسے اسٹڈی سے دور رکھتا تھا، مگر آج وہ چاہتا تھا کہ وہ موجود رہے۔ عورت پھٹ پڑی، سلمان صاحب، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے بیٹے کو بچا سکے۔ پولیس نے جھوٹا مقدمہ ڈال دیا ہے، وہ بے قصور ہے، اسے کسی گینگ کے کیس میں پھنسا دیا گیا۔ سلمان نے کمپوز لہجے میں کہا، میں نے فائل دیکھ لی ہے، کیس واقعی مضبوط نہیں، مگر جس نے اسے پھنسایا ہے وہ عام آدمی نہیں، معاملہ سیاسی ہے۔ وہ مرد گڑبڑایا، آپ جو کہیں گے مانیں گے، بس میرا بیٹا رہا ہو جائے، وہ ابھی بچہ ہی تو ہے۔ فصیحہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سلمان کا چہرہ سخت تھا، مگر آنکھوں میں انصاف کی عجیب چمک تھی۔ وہ لوگوں کے دکھوں سے بے نیاز نہیں تھا، بس دکھ ظاہر کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا، سلمان نے صاف لہجے میں کہا، مگر کچھ باتیں آپ کو سمجھنی ہوں گی۔ اس لڑکے کے پیچھے کوئی ہے جس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا۔ مجھے اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے۔ عورت دوبارہ رونے لگی۔ فصیحہ کا دل ہل گیا۔ سلمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے نظریں کہہ رہی تھیں، یہ ہے زندگی، یہ ہے وہ جنگ جس میں ہر روز میں جلتا ہوں۔ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے آرام سے ٹائی ٹھیک کی اور سانس لیتے کہا، کچھ باتیں دیکھ کر انسان بدل جاتا ہے، مگر تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں اس طرح کی چیزیں پریشان کر سکتی ہیں۔ فصیحہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میں چھوٹی ہوں شاید، مگر سمجھتی ہوں، اور شاید اسی لیے آپ نے مجھے یہاں رہنے دیا۔ سلمان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا، وہ نظر جس میں پہلی بار تسلیم کا رنگ تھا۔ ہاں، شاید اسی لیے۔ دوپہر تک پورا گھر خاموش تھا۔ فصیحہ کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہ چونکی۔ سلمان کبھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا، احترام میں یا عادت میں۔ دروازہ کھلا تو سلمان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی الجھن تھی، یا شاید کچھ اور جو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ فصیحہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آپ، کچھ چاہیے تھا؟ سلمان نے کمرے کا جائزہ لیا، جیسے پہلی بار یہ تسلیم کر رہا ہو کہ یہ روم اب صرف مہمان کا نہیں بلکہ نکاح کی شریک کا ہے۔ میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ فصیحہ کی سانس رک گئی۔ سلمان آہستہ بولا، تم اس نکاح سے خوش ہو؟ یہ سوال فصیحہ کے لیے بالکل نیا تھا۔
वो तो एक मुआहदे के तहत आई थी, खुद कहा था कि जो कहेंगे मान लेगी। लेकिन अब जब सलमान पूछ रहा था, जवाब देना मुश्किल हो गया। फसीहा ने नजरें झुकाकर कहा, सच पूछें तो मैं घबराती हूं, आपसे नहीं, सूरत हाल से। सलमान खामोश रहा। यह रिश्ता मेरे लिए नया है, मैंने कभी ऐसे फैसले नहीं सोचे थे, लेकिन आपने मुझे इज्जत दी है। और वो रुकी, फिर हिम्मत करके कहा, मैं नेचुरली आपकी कुर्बत से खौफजदा नहीं रही, बल्कि कुछ अजीब सा सुकून मिलता है। यह एतराफ सलमान के चेहरे पर हल्की सी हैरत ले आया। वो चंद कदम आगे बढ़ा, फासले को सुकड़ते हुए। फसीहा, मैंने तुम्हें कभी भी तंग नहीं करना चाहा, तुम इस निकाह में मजबूरी में आई थी, लेकिन अब अगर तुम चाहो तो। फसीहा का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि ये वो लम्हा है जो सलमान ने इशारा दिया था। मगर उसी वक्त फोन बज उठा। सलमान ने बेचैनी से फोन निकाला। जी। फोन की दूसरी तरफ शायद कोई बहुत संगीन बात हो रही थी। सलमान की आंखों में अचानक गुस्सा और इस्तराब नमूदार हुआ। क्या? अभी? मैं पहुंच रहा हूं। फोन बंद किया और फसीहा की तरफ देखा। मुझे फौरी जाना है, मामला खराब है। फसीहा ने तेजी से पूछा, क्या हुआ? सलमान ने सिर्फ इतना कहा, जिस केस की आज बात हुई थी उस लड़के की जान को खतरा है, और यह सब महज इत्तेफाक नहीं, कोई चाहता है कि मैं ये केस ना लूं। फसीहा का चेहरा सफेद पड़ गया। सलमान ने आहिस्तगी से कहा, डरना नहीं, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। और एक बात। वो रुका, फसीहा का दिल डूबने लगा। सलमान ने धीरे से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में किसी पर भरोसा ना करना, अगर कुछ महसूस हो फौरन मुझे कॉल करना। फसीहा ने सर हिलाया। ठीक है। सलमान ने एक लम्हा उसे देखा। वो नजर इतनी गहरी थी जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वक्त इजाजत नहीं देता। फिर तेज कदमों से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ, खामोशी कमरे में छा गई। पहली बार फसीहा ने महसूस किया कि सलमान आफंदी की दुनिया खतरात से भरी हुई है, और अब वो खुद इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। रात तक सलमान वापस न आया। घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। फसीहा हर आवाज पर चौंक उठती, दिल में खौफ बैठ जाता। समारा ने उसे तसल्ली दी, साहब ऐसे वक्तों में मसरूफ हो जाते हैं, मगर फिक्र न करो, वो बहुत समझदार हैं। मगर फसीहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खिड़की के पास बैठ गई, बाहर अंधेरे में सड़क को देखते हुए, उंगलियां कपड़े की सिली में फंसाते हुए, दिल में खतरे का खदशा लिए। फिर फोन बजा। स्क्रीन पर सलमान का नंबर था। फसीहा ने फौरन कॉल उठाई। हेलो, आप ठीक हैं? सलमान की आवाज भारी थी, जैसे किसी थकन या जंग से गुजर कर आ रहा हो। मैं ठीक हूं, बस केस उलझ गया है, तुम आराम कर लो, देर हो जाएगी। फसीहा की आंखों में नमी आ गई। आप कब आएंगे? सलमान ने लम्हा भर खामोश रहकर जवाब दिया, जैसे ही सब संभल जाएगा, तुमसे मिलने के लिए। ये अल्फाज फसीहा के दिल में उतर गए, नरम मगर भारी। अपना ख्याल रखिएगा, वो बेख्तियार बोली। सलमान ने पहली बार बहुत नरम लहजे में कहा, तुम्हारा ख्याल मैं बहुत पहले ही रख रहा हूं। कॉल बंद हो गई। फसीहा ने आंखें बंद की और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह निकाह महज एक मुआहदा नहीं रहा, यह रिश्ता बदल रहा था, और इस बदलाव की हवा दोनों को अपनी तरफ खींच रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर फसीहा की आंखों में नींद का एक जरा सा भी असर नहीं था। खिड़की के बाहर अंधेरे में अजीब खामोशी फैली हुई थी, जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, और उस खामोशी में सलमान की आखिरी बातें गूंज रही थी। तुम्हारा ख्याल मैं पहले ही रख रहा हूं। ये जुमला दिल में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने धीरे से उसकी दुनिया बदल दी हो। अब वो सिर्फ एक मेहमान, एक मजबूर लड़की, एक मुआहदे वाली बीवी नहीं रही थी। कुछ और था, कुछ नया, कुछ ऐसा जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो बेड के किनारे बैठी, हाथों में चादर की शिकनें दबाए, खुद को इस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर कोशिश नाकाम थी। सलमान की गहरी आवाज, उसकी मजबूत शख्सियत, उसकी खामोश हिफाजत, ये सब इसके दिल पर ऐसा नक्श छोड़ने लगे थे जो वो चाहे भी तो मिटा ना सकती थी। सुबह का सूरज पर्दों से झांकने लगा तो फसीहा की थोड़ी बहुत बेचैनी कम हुई। वो उठकर वॉशरूम गई, चेहरा धोया,
خود کو نارمل بنانے کی کوشش کی، مگر دل کی دھڑکن اب بھی کچھ زیادہ تیز تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو پورے گھر میں پہلے جیسی مصروفیت تھی۔ ملازمین کام میں لگے ہوئے تھے، ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر سلمان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ سمارا نے اسے دیکھا تو فوراً بولی، صاحب آج صبح ہی باہر چلے گئے تھے، کہا تھا شام تک واپس آ جائیں گے۔ فصیحہ نے سر ہلایا، لیکن دل میں ہلکی سی کسک ہوئی۔ اسے سلمان کے جانے کی فکر پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اس کی غیر موجودگی عجیب طریقے سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی، مگر نوالا حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ دن کا بیشتر حصہ فصیحہ نے لائبریری میں گزارا۔ وہ کتاب کھول کر بیٹھتی، مگر صفحہ کچھ لمحوں میں دھندلا ہونے لگتا، کیونکہ اس کے ذہن میں بار بار کل رات کی گفتگو آ جاتی۔ سلمان کے سوال، اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں کی گہرائیاں، کیا وہ واقعی سب اسی لیے کہا تھا یا محض ایک ذمہ داری کا حصہ تھا؟ فصیحہ اس الجھن میں گھری رہی۔ دوپہر ڈھلنے تک بھی سلمان کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ پورا دن اتنی بے چینی سے گزار رہی تھی۔ شام کے قریب اچانک مین گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ فصیحہ بے اختیار آگے بڑھی، جیسے دل نے قدموں کو دھکا دیا ہو۔ وہ ہال میں پہنچ رہی تھی کہ سلمان اندر داخل ہوا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ، کپڑوں پر گرد، آنکھوں میں ہلکی سی سرخی۔ مگر جیسے ہی فصیحہ اس کے سامنے آئی، سلمان کی رفتار رک گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، جیسے کسی طویل دن کے بعد اسے کسی اپنی چیز میں سکون ملا ہو۔ فصیحہ نے ہولے سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ سلمان کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم سی تھکن آمیز مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اب ٹھیک ہوں۔ یہ لفظ فصیحہ کے دل میں دھڑکن بن کر جا بسا۔ سمارا ان دونوں کو دیکھنے لگی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ لاؤنج میں عجیب سی خاموشی، عجیب سا لمس، عجیب سی کشش پھیل گئی۔ سلمان نے کوٹ اتارا اور گہری سانس لے کر قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فصیحہ نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی، جسے سلمان نے محسوس کیا۔ اس نے پانی لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، ڈر گئی تھی؟ فصیحہ نے نظریں جھکائیں۔ پتہ نہیں، بس بے چین تھی۔ سلمان نے پانی پیا، پھر گلاس رکھتے ہوئے بولا، بے چینی ہمیشہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ چونکی، اوپر دیکھا تو سلمان کی نظریں جیسے اس کی اندر تک دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں میری فکر ہونے لگی ہے فصیحہ؟ فصیحہ کا دل جیسے کسی نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ وہ کچھ لمحے بول نہ سکی، پھر ہلکے سے کہہ پائی، شاید ہاں۔ سلمان خاموش ہو گیا، لیکن اس خاموشی میں جذبات کا ہلکا سا طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس نے فصیحہ کے بالوں پر بہت ہلکا، بہت محتاط سا ہاتھ رکھا، جیسے بے اختیار، جیسے وہ ایسا کرنے کا عادی نہ ہو مگر روک بھی نہ پا رہا ہو۔ فصیحہ کا سانس اٹک سا گیا۔ سلمان نے دھیرے سے کہا، آج تمہاری فکر میرے پورے دن پر بھاری رہی ہے، شاید اس سے زیادہ جتنا ہونا چاہیے تھا۔ یہ جملہ ایسا تھا جس نے فصیحہ کے دل کو بے نام سی خوشی سے بھر دیا۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سلمان نے ہاتھ اٹھایا، جسے اپنی ہی کمزوری محسوس کر کے پیچھے ہٹ گیا ہو، مگر فاصلہ مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ فضا بدل چکی تھی، حدود بدل رہی تھی۔ رات کے کھانے پر سلمان غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ وہ پہلی بار فصیحہ کو دیکھ کر یوں بات کرتا جیسے صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کی موجودگی سے کسی طرح آرام مل رہا ہو۔ باتوں کے دوران سلمان نے اچانک کہا، کل تمہیں کالج جانا ہے نا؟ فصیحہ چونکی، آپ کو کیسے؟ سلمان ہلکا سا مسکرایا، تمہاری فائل میں تمہارا شیڈیول ہوتا ہے، میں کیسز کی طرح رشتوں کو بھی بغیر معلومات کے نہیں چھوڑتا۔ فصیحہ نے پہلی بار سلمان کے انداز پر واقعی مسکراہٹ محسوس کی۔ میں چھوڑ آؤں گا تمہیں۔ فصیحہ فوراً بولی، ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے، سلمان نے آہستہ کہا، اور یہ جملہ فضا میں ٹھہر گیا۔ فصیحہ کے ہاتھ رک گئے، دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا۔ سلمان نے اپنی پلیٹ میں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں شاید اب اور زیادہ چھپا نہیں سکتا۔ فصیحہ کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔
वो पूछना चाहती थी कि सलमान क्या कहना चाहता है, मगर सलमान ने अपनी बात रोक ली, जैसे वो जानता हो कि सही वक्त अभी नहीं आया। खाने के बाद वो दोनों लाउंज में बैठे थे। सलमान अखबार पढ़ रहा था, फसीहा मोबाइल के नोटिस। घर पुरसकून था। फिर सलमान ने अखबार बंद किया और सीधा कहा, फसीहा तुम्हें कुछ बताना है। वो सीधी होकर बैठ गई। सलमान ने नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी, गहरी, संजीदा और गैर मामूली तौर पर नरम। हम दोनों का रिश्ता इस मुआहदे से आगे बढ़ा है। मैं इस बात को नज़रअंदाज भी कर सकता था, मगर तुम्हारी आंखों में जो है उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। फसीहा का दिल सीने में सिमट गया। अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, सलमान धीरे से बोला। एक हकीकी रिश्ता, बिला शर्त, बिला जबर। फसीहा की सांसें रुकने लगी। ये वो लम्हा था जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था, या शायद दिल के किसी कोने में उम्मीद जरूर रखी थी। मगर सलमान ने मजीद कहते हुए उसे और भी हैरान कर दिया। मगर फैसला तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ वो जिंदगी जो तुम चाहो तो मेरी दुनिया से दूर गुजार सकती हो। जो भी तुम कहोगी मैं मान लूंगा। फसीहा ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार कमजोर लगा, या शायद सच्चा, जैसे वो वाकई उसके जवाब पर खुद को भूलकर खड़ा था। तुम बताओ फसीहा। सलमान की आवाज हल्की थी। क्या तुम इस निकाह को दिल की रजा से कबूल करना चाहती हो? फसीहा की दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई, और ये वो लम्हा था जिसके बाद सब बदलने वाला था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोश सा जमूद फैल गया। ऐसा जमूद जो फैसलों से पहले आता है, ऐसा जो सांसों को रोक लेता है, ऐसा जो दिल को हल्का भी करता है और बोझल भी। फसीहा के सामने सलमान खड़ा था, वो शख्स जो कभी उसकी जिंदगी में बेरहम हकीकत की तरह आया था, और अब उसी के सामने अपनी कमजोरी, अपनी चाहत और अपनी इजाजत लिए खड़ा था। फसीहा की उंगलियां कपकपा रही थीं। सलमान ने उसे किसी जल्दी में नहीं डाला। वो खामोश खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि एक लम्हा गलत हो तो सब कुछ बिखर सकता है। फसीहा के दिल में कई यादें एक साथ आईं। उसकी बहन की मुसीबत, अपनी बेबसी, वो निकाह जो इसने मजबूरी में किया था, फिर पिछले दिनों की खामोश मोहब्बत भरी तब्दीलियां भी। सलमान की हिफाजत, उसका ख्याल, उसका बदलता रवैया, और फिर वो एतराफ़ कि रिश्ता अब महज मुआहदा नहीं रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए सलमान के बिल्कुल सामने आ गई। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ फैसला था। मैं, उसकी आवाज़ टूट कर निकली। वो खुद भी हैरान थी कि इतना हौसला कहाँ से आया। सलमान की नज़रें एक लम्हे के लिए गहरी हो गई। मैं चाहती हूं कि यह निकाह मुआहदा न रहे, फसीहा ने धीरे से कहा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, दिल की रजा के साथ। सलमान जैसे लम्हे भर के लिए साकिन हो गया। फिर उसकी सख्त मजबूत आंखों में वो नरमी उभरी जिसे फसीहा ने पहले कभी इतना खुलकर नहीं देखा था। वो एक कदम करीब आया, फिर रुक गया, जैसे इजाजत चाह रहा हो। फसीहा ने सर हल्का सा हिला दिया। सलमान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। उसका लम्स गर्म था, महफूज था, और शायद वही लम्स था जिसकी फसीहा को कई दिनों से ख्वाहिश थी। माने या ना माने, तुम्हें अंदाजा नहीं फसीहा, सलमान ने आहिस्ता कहा, कि तुमने अभी मेरी कितनी बड़ी कमजोरी को जिंदगी दे दी है। फसीहा की आंखें भीग गई, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे। उस रात घर की खामोशी बदल गई। माहौल वही था, चीजें वही, मगर एहसास बदल गया था। खाने के बाद सलमान ने उसे रोके बगैर कहा, आज जरा मेरे साथ चलना। फसीहा हैरान हुई, मगर खामोशी से उसके साथ चलती। वो उसे घर के पिछले बाग में ले गया, वो बाग जहां फसीहा पहले कभी नहीं आई थी। बड़ी बड़े दरख्तों के बीच हल्की जर्द लाइट्स जल रही थी, और हर तरफ रात की हवा में हल्की खुशबू फैली हुई थी। सलमान ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो, उसकी आवाज़ कहीं धीमी पड़ गई, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी को अपने करीब आने दूंगा। मेरी जिंदगी बस जीते गए केसेस, जिम्मेदारियां और तन्हा फैसले थे। फसीहा खामोश रही। वो जानती थी कि सलमान जैसे लोगों के दिल खोलने के लम्हे बहुत नायाब होते हैं।
फिर तुम आई, सलमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ना पैसे लेकर, ना कोई शर्त रखकर, बस सच्चाई के साथ, और शायद इसी सच ने मुझे जीत लिया। फसीहा के दिल में अजीब सा सुकून उतरा। सलमान ने हल्का सा मुस्कुराकर मजीद कहा, अब जब तुमने खुद इस रिश्ते को कबूल किया है तो कुछ चीजें मैं भी बदलना चाहता हूं। फसीहा चौंकी। क्या चीजें? सलमान चंद कदम आगे बढ़ा, फिर उसके सामने आकर रुक गया। पहली चीज, उसने नरम लहजे में कहा, ये 3 माह वाला मुआहदा आज से खत्म। ये रिश्ता अब मुकम्मल और हकीकी है, मुद्दत के बगैर, शर्त के बगैर। फसीहा का दिल धड़क उठा। और दूसरी चीज, सलमान ने फसीहा का हाथ पकड़ा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम वही पढ़ोगी जो चाहती हो, और तुम्हारी जिंदगी वही होगी जो तुम खुद मुंतखब करोगी। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, न किसी फैसले में तुम्हें मजबूर करूंगा। फसीहा की आंखों के किनारे नम हो गए। ऐसा सलूक उसने कभी सोचा भी नहीं था। तीसरी चीज, सलमान का चेहरा पहली बार मुकम्मल नरमी से भरा हुआ था, मुझे तुम पर फख्र है फसीहा, इस हिम्मत पर, उस सच्चाई पर, उस मोहब्बत पर जो शायद तुम खुद भी नहीं जानती कि तुमने मुझे दे दी है। फसीहा बेख्तियार आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। उसे लगा जैसे दुनिया की हर मुश्किल, हर खौफ, हर बेबसी उसी लम्हे ख़त्म हो गई हो। सलमान ने हौले से उसकी पुश्त थामी। उसके लम्स में ताकत भी थी, तहफ़्फ़ुज़ भी, और वो बेइंतहा प्यार भी, जो अल्फाज में शायद कभी नहीं कह पाता। चंद दिन बाद सलमान ने खुद फसीहा को कॉलेज छोड़ा। कॉलेज की लड़कियों ने हैरत से उसे आती हुई गाड़ी से उतरते देखा। एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा नाम, और साथ वो शख्स जो मुल्क के बड़े वज़रा को भी इंतज़ार करवाता था, आज एक नौजवान लड़की के लिए गाड़ी से खुद उतरा हुआ था। फसीहा ने शर्मिंदगी से नज़र से सलमान की तरफ देखा। लोग देख रहे हैं। सलमान ने खामोशी से उसकी किताबें ली और उसे पकड़ाते हुए बोला, देखने दो, आज पहली बार मैं किसी को दिखा रहा हूं कि ये मेरी अमानत है। फसीहा का दिल जैसे पिघल गया। सलमान ने उसका माथा बहुत मोहतरमाना अंदाज में छुआ। एक प्यार, एक वादा, एक ऐलान, शाम को मैं खुद लेने आऊंगा। फसीहा ने हाँ में सर हिलाया और पीछे मुड़कर सलमान को देखती रही। वो चला गया था, मगर फसीहा के दिल में पहली बार रुक गया था। वक्त बदल गया। सलमान का केस जीता, वो केस जिसके लिए फसीहा आई थी। उसकी बहन को इंसाफ मिला और फसीहा ने पहली बार जिंदगी को जीता। और सलमान अब वो महज वकील नहीं था, वो उसका घर था, उसका सुकून था, उसकी पूरी दुनिया था। एक शाम जब आसमान पर हल्की बारिश हो रही थी, फसीहा लॉन में चाय लिए खड़ी थी, जब सलमान आया और उसके पीछे खड़ा होकर बोला, मुझे लगता है मैं पहली बार अपनी जिंदगी मुकम्मल महसूस कर रहा हूं। फसीहा ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में देखा। आपने मुझे वो सब दिया है जो मैंने कभी मांगा भी नहीं था, फिर भी सब कुछ मिल गया। सलमान ने चाय का कप उसके हाथ से लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने मुझे वो दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो सुकून, मोहब्बत और एक घर का एहसास। ये रिश्ता अब किसी मुआहदे का कर्ज नहीं था, ये मोहब्बत की कमाई थी, एक मजबूत और खूबसूरत अंजाम के साथ। उन दोनों की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।